the series of solving all the questions that appeared in your CSL exam for 2025. In our previous two sessions, we have already discussed 10 questions of your maths. So now, in that very same series, we are proceeding with the third part. In this session, we are going to discuss few more questions which appeared in the very same exam. Before starting our discussion, I would just like you to know, or I would just like to inform you all that we are going to start our very fresh batch for elementary maths and reasoning from 10th November onwards. The class timing will be from 4:30 p.m. onwards. So if you are willing to prepare maths and reasoning, if you have any trouble in maths or reasoning, or as per se if you are planning to fight for any competitive examination in which maths and reasoning is a part of your syllabus, then you should consider joining this class. I will be teaching you maths and reasoning from the very basics level to the most advanced level. Even I can promise you that I would be taking you few notches above than the actual requirement of your exam. आपका एग्जाम जितना तक पूछेगा मैं उससे भी आपको एक दो लेवल ऊपर लेकर जाऊंगा. So that would be our course of discussion, or that would be our objective in this class. I just demand 2 months from all of you. Within these 2 months, you will become from zero to hero in your maths and reasoning. So if you have any interest, if there is any student near you, whether he or she could be your friend, your brother, sister, anyone who is willing to prepare elementary maths and reasoning, then do call on these numbers. We would be very happy to welcome you all, be our guest. So without any further ado, now let's start our discussion for the day. So in our previous session, we have discussed question number 60. Up till question number 60, we have discussed in our previous session. So from today, we are going to start from question number 61. ठीक है ना? तो 61 number question आपका क्या कह रहा है? That's what we are going to see. First of all, try to understand the question. What does it say? It says a vehicle covers a distance of 43.2 kilometer, 43.2 kilometers in a 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? I would say that it is just a unitary method question. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों की क्लासेस में सिखाया जाता है जो यूनिटरी मेथड, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है. कह रहा है कि अगर 2.4 लीटर पेट्रोल भरा था उस गाड़ी में, तो वो गाड़ी कितनी चली थी? 43.2 किलोमीटर चली थी. तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल होता तो कितनी चलती? Getting the question? The question says that the vehicle has ran or covered 43.2 kilometer in 2.4 liter. The question is asking how far would it go in 1 liter of petrol. Fine. तो जरा देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2.4 लीटर में कितना चली है? 43.2 किलोमीटर चली है. तो फिर आपसे ये पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितना चलेगी. यही तो पूछ रहा है आपसे. कैसे बनाएंगे? सिंपल सा तरीका है. यहां पर जो 2.4 है इसको क्या मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2.4 लीटर, या फिर 1 लीटर इंटू 2.4 लिख तो सकता ही हूं मैं. 1 लीटर इंटू 2.4 इक्वल्स टू 43.2 किलोमीटर. मैं आपको ये खोल के इसलिए कैलकुलेशन दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं. अदरवाइज एक्चुअल एग्जाम में आपको ये इतना खोलने की जरूरत नहीं होती है. यहाँ तो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ सो दैट आपको आंसर के साथ साथ ये पूरा प्रोसेस समझ में आए. अब जरा देखिए, तो मुझे 1 लीटर चाहिए था ना, तो 2.4 को उधर ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा. 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4. ठीक है ना? ये 2.4 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है. इन आवर क्लासेस हम ये भी सिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है. इसके पीछे का भी बेसिक्स आपको डिटेल में समझाया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. केवल रटवा नहीं दिया जाता है कि ऐसा ही होता है. ठीक है ना? सो आवर फोकस रिमेन्स ऑन दैट. चलिए जरा ध्यान दीजिए. अब डेसिमल है, डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में एक 10 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में एक 10 आ जाएगा. वैसे इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होती है एक्चुअल एग्जाम में. डेसिमल से डेसिमल मैं सीधे काट दूंगा, बट हाँ आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ.
तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया सर 432/24। अब देखिए अगर मैं 24 से 432 को काटूं तो क्या हो रहा है, काट के देखते हैं। 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं पहले तो, ठीक है ना, 13 हो जाएगा। हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो इधर 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा जी, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 13 हो गया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 12 हो गया, 3 4 जा 12। अब फिर से देखिए 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 8 1 जा 8, अगर 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, आगे है 464, तो 8 8 8 जा 64, तो कितना हो गया जी 1 लीटर इक्वल्स टू, अरे 1 लीटर उधर सॉल्व होकर कितना आ गया 18, यानी कि 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितना चलेगी, आपकी गाड़ी चलेगी 18 किलोमीटर। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी विच सेज 18 किलोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ तो मैंने आपको खोलकर बताया है, अदरवाइज देख के ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि भाई 43.2 किलोमीटर चल रही है 2.4 में, तो यहीं से आदमी बना सकता था 43.2, तो सीधे इन दोनों के बीच का रिलेशन खोज लो, इस डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, 24 1 जा 24, 43 में अगर 24 को मैं माइनस करूंगा तो कितना बच रहा है 19, आगे 2 है तो 192 हो गया, 24 8 जा 192, लीजिए एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, समझ गए ना। लेकिन आप इस स्पीड में इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इसके पीछे का पूरा बेसिक्स क्लियर होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, दैट्स स्मूथ, गॉट द पॉइंट। हम अपनी क्लासेस में आपको इस तरीके से जरूर तैयार कर देंगे कि आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे, इस एक सेम थीम पर कितने सारे चैप्टर हम लोग खत्म कर देते हैं। चलिए आते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द एज ऑफ अ 5 टीचर in a school are 33 42 44 40 and 36 in years, मतलब 5 टीचर है, पांचों टीचर का एज दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि मीन एज बता दो, एक ही लाइन में बता देता हूं, मीन का कुछ नहीं मतलब होता है, मीन का सिंपल सा मतलब होता है एवरेज, ठीक है ना। मीन को अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो मीन कुछ भी नहीं है, एवरेज है, यानी कि आपको एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज यानी कि क्या करना है कि जो एजेस दिए हुए हैं उनका सम कर दीजिए, यानी कि 33 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 36, और टोटल कितनी है ये क्वांटिटीज 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5। अब ये आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट यहीं से देखकर ऐड कर लेंगे, इतना थोड़ी टाइम है कि दोबारा इस क्वेश्चन को उतारेंगे ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ना, ठीक है। तो ऐड कीजिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी ऐड कीजिए, 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 3 5, यानी कि 15 15 का 5 कैरी 1। आगे देखिए 4 4 8 8 3 11 11 + 4 15 15 + 3 18 18 + 1 19/5, सॉल्व कीजिए, 5 से काटूंगा 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, आगे है 45 5 9 जा, यानी कि आपका कितना आ गया जी 39 ईयर, which means A should be your correct answer, फाइन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे एवरेज पूछा था, ठीक है ना। देखिए इन क्वेश्चंस में गेम ये होता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, बनाने के लिए तो बच्चा बना लेगा, लेकिन मुद्दा वही है ना कि अगर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तो फिर आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपको ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आप सही तरीके से टाइम दे नहीं पाएंगे, वहां पर पैनिक हो जाएगा, एंड पैनिक वुड लीड टू error in your solution, fine enough. So this was your second question. Now moving towards the third question, what does it say, let's see। चलिए जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹220 इज एट द लॉस ऑफ 12%। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, खूब सारे फॉर्मूला रटवाए जाते हैं, हम अपनी क्लासेस में बिना मतलब के फॉर्मूला नहीं देते हैं आपको रटने के लिए, बेसिक से बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है। मैं पहले तो आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं क्या होता है फॉर्मूला, लेकिन उसकी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि अगर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, अगर
लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। तो तरीका तो यही है कि आप क्या करिए, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी कि 220 दे रखा है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो यही निकालना है। 100 माइनस लॉस यानी कि 100 माइनस कितना है 12%, ये आपको दे रखा है। तो सॉल्व कर दीजिए। 220 इक्वल्स टू सीपी की जगह पर सीपी रहने देता हूं, इसको कितना कर दूंगा जी 100 माइनस 12 यानी कि 88%, उसको इधर उठा के ले आइए। तो 220 डिवाइडेड बाई 88 और वो जो परसेंटेज का साइन है वो उसका मतलब होता है बाई 100, तो बाई 100 यानी कि ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू सीपी। काट दीजिए, दोनों कटेगा सर 11 से, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 20 हो गया। अब फिर से 8 से काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 100 को कितनी बार में कट जाएगा सर 50 बार में, 55 जा कितना होता है सर 55 जा होता है 250, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 250। तो ये तो हो गया आपका पूरा फॉर्मूला के बेसिस पर, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप सॉल्व करिए तब आपका ये आंसर आएगा। कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, बस मैंने वैल्यू पुट किया है। आप चाहें तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। बट हमें ऐसे बनाना नहीं है, हमें कैसे बनाना है फिर एक्चुअल एग्जाम में, हमें बनाना है जो हम लोग क्लास में सीखते हैं कि इस पूरे चैप्टर का हीरो जो होता है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर का जो बेस होता है, कोर होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट या लॉस सब कुछ कॉस्ट प्राइस पर डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा खुद का 100% होता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। बाकी जो सेलिंग प्राइस है वो डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये लॉस वाला सेलिंग प्राइस है। तो 100 में अगर 12 माइनस करूंगा तो यानी कि ये किसका वैल्यू है, ये 88% का वैल्यू है। 88% का वैल्यू है 220, तो मुझे चाहिए 100% का वैल्यू, बस यही निकालना है आपको कि अगर 88 का वैल्यू 88% का वैल्यू अगर 220 है तो 100% का वैल्यू बता दो मुझे, समझ गए। 88 से 220 के बीच का रिलेशन खोजना है, तो 88 2 जा 176, 88 2 जा 176, 220 में से 176 को माइनस करूंगा तो 4 इधर रह गया, उधर कितना बच गया जी, उधर बच गया 40, तो यानी कि हो गया आपका 46। एक डेसिमल लगाइए तो 460 हो जाएगा, और 88 5 जा 88 5 जा कितना हो जाएगा जी आपका, 88 5 जा हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी 88 2 जा हो जाएगा आपका कितना 176, तो 4 इधर बच रहा है, उधर 40, यानी कि 44 बच रहा है, ठीक है ना। डेसिमल लगा के एक जीरो लगा दिया तो कितना हो गया 440 हो गया, और फिर 88 5 जा 440 यानी कि 2.5 टाइम्स है, तो 100 में अगर मैं 2.5 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। एक लाइन में बना सकते थे, आंसर क्या हो जाएगा आपका सही, सही सीधा आंसर हो जाएगा आपका 250। देख लीजिए ये सेम कैलकुलेशन आप पिछले 3 वीडियोस में ही देख लीजिए, इस तरह का सेम कैलकुलेशन मैंने कितनी बार किया है, और इससे आप अपने मन में ये भरोसा जगाइए, या फिर आपको इस बात से एक बिलीफ आपके मन में ये डेवलप हो सकता है कि जरा देखिए कि कैसे एक थीम से ही डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को संभाला जाता है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए एक अलग ही ट्रिक रटवा रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। बिलीव मी, ये बातें बच्चों को तब समझ में आती है जब वो एग्जाम में जाते हैं और जब जाके कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। वो YouTube पर जो वीडियो बनाने वाले हैं वो तो बना के अपना चले जाते हैं क्या कि आओ आज एक तो नया ट्रिक सिखा रहे हैं, कल एक तो नया ट्रिक सिखा रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में जाकर वो कोई ट्रिक काम नहीं आता है। आपका क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका बेसिक्स क्लियर है, जब आपने चीजों को कनेक्ट करके पढ़ रखा है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। समझ गए ना। मुद्दा ये है कि आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाइए। सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लोग जो है खुद खूब जो है वो अपनी बड़ाई करते हैं क्या कि 1 सेकंड में जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये ट्रिक रट लो। अरे यार कितने ट्रिक रट लेंगे, आपको जीएस में याद करना है ना, वहां याद करिए ना, वहां रटना है, जहां रटना है वहां रटिए। तो वहां पर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, तो वहां तो आपको याद नहीं रहता है। जहां समझना है, मैथ्स इज द प्योरेस्ट साइंस, जहां पर चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ विजुअलाइज करना है, वहां पर आप बैठ के रट रहे हैं। समझ गया ना, अप्रोच बदलिए, ठीक है ना। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से दिक्कत में रहेंगे कि बिना मतलब का जो है वो खाली फॉर्मूला रटे जा रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट
को क्लियर करके बिल्कुल बेसिक से लेकर अगर एडवांस तक अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो 10th नवंबर से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑल, बी आवर गेस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 64th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जरा देखिए। 64th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस रूपा buys a saree for ₹500. If she gets a 10% discount, then the purchase price of the saree becomes, मतलब 500 रुपया का कोई साड़ी खरीदने गई थी, उस पर 10% डिस्काउंट मिल गया, तो अब बता दो कितने का साड़ी हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10% किसी भी नंबर के पीछे से एक जीरो हटा दीजिए, वही होता है, ठीक है ना। 500 रुपया में खरीदने गई थी, 10% डिस्काउंट मिल गया, 500 का 10% कितना होता है, 50 होता है, तो यानी कि 50 रुपया कम हो गया, तो क्या हो गया आंसर, 450। इसको कहते हैं पढ़ना, समझ गए ना। बिना किसी कैलकुलेशन के मुंह से देखकर क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर देना, क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गए ना। या कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, वैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा सकता हूं। 10% का डिस्काउंट दिया है ना 500 पर, तो 500 का 10% निकाल लीजिए, तो 500 का 10% निकालते हैं, तो 500 का 10% का मतलब क्या हो गया, 500 इंटू 10 बाई परसेंट का मतलब होता है बाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 5 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 50, हो गया ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि इतना कम कर दिया गया है। इतना तो आप सभी जानते हैं, डिस्काउंट तो आप लोग करवाते ही रहते हैं जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कम कर देना। तो यानी कि 500 प्राइस था, उसमें 50 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, यानी कि 50 कम कर दिया, तो कितने का पड़ा है उसको साड़ी, उसको साड़ी पड़ा है 450 रुपी का। तो दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज योर आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो आप देखकर बना सकते थे। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड दैट इज मिस प्रिया invested ₹6,000 for 3 years and received 1,080 as interest. The rate of simple interest is, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, फॉर्मूला आपका कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है PRT/100, बच्चा वाला क्वेश्चन फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, PRT/100। इनमें से 3 चीजें दे रखी है, एक चीज गायब कर दिया है, रेट गायब कर दिया है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, रेट पूछ रखा है, ठीक है ना। क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर, 1080। ये जो 100 है इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सर, अरे यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। बाकी इधर प्रिंसिपल है, वो उधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 6000, और जो टाइम है वो भी नीचे आकर डिवाइड में आ जाएगा। उधर क्या बचा, उधर कुछ नहीं बचा, केवल रेट बचा। फिर से देख लीजिए, 100 जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और टाइम जो है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और साथ ही साथ मैंने वैल्यू भी पुट कर दिया है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल दे रखा है 6000 रुपी और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। तो आई हैव जस्ट पुटेड द वैल्यूज हियर, गॉट द पॉइंट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। अब देख लीजिए 3 से काटते हैं, 3 से इसको काट के देखते हैं, 3 से अगर काटूंगा तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, आगे है 18, 3 6 जा 18, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 6 जा 36, यानी कि रेट इक्वल्स टू क्या आ गया जी, 6 आ गया, यानी कि आपका रेट कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 6%। फाइन इनफ, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So this is how these questions could have been solved easily, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आंसर बताना नहीं है, अभी तक तो आप लोगों ने आंसर की वगैरह देख लिया होगा। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस डिस्कशन के थ्रू मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि आखिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है ना। मोर और लेस सेम थीम पर ही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगले ईयर और भी किसी एग्जाम में आपके लिए ये डिस्कशन हेल्पफुल हो सकता है, दैट इज आवर पर्पस। इसके अलावा मैंने जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो भी आपको दे दी। क्या इंफॉर्मेशन थी कि हम अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब से,
हम अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th नवंबर से। सो इफ यू आर विलिंग, आपके आसपास अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई भी बच्चा जो सीरियस है एग्जाम को लेकर, ऐसे टाइम पास वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा सीरियस है, अगर वो सही में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, अगर सही में वो चाहता है कि बार बार जो अलग अलग एग्जाम में जाकर वही मैथ्स और रीजनिंग में सिली मिस्टेक करके, गलती करके जो बार बार फेल हो रहा है, अगर वो चाहता है कि अपनी तैयारी को एक बार सही तरीके से जो है वो किया जाए, एक बार सीरियस होकर पढ़ा जाए और एग्जाम निकालकर अपने करियर के साथ आगे बढ़ा जाए, सो यू आर वेलकम। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कीजिए और जुड़िए। फ्रॉम 10th नवंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द वेरी फ्रेश बैच फॉर एलिमेंट्री मैथ्स एंड रीजनिंग।